Today we are going to discuss about AWK. Fine. And AWK basically stands for a scripting language for your data manipulation. So there are a lot of data in day-to-day life, and if you want to process that data and you want to generate some reports or you want to get some insight in that particular data, then you can use the AWK command. In simple terms, अगर आपको इसको understand करना है, then you can assume we have something called control F in Windows also, that is find. ठीक है, and we have something called replace, control F, control H. So treat AWK as a forefather of these commands. So control F is like a baby, and this fellow is like a Godzilla in front of that. Okay, so we have lot of functionalities with AWK. So basically ये करता क्या है, क्विकली देखते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वाई इट्स नेम इज AWK. So it stands for the abbreviation of its developers. ठीक है, Aho and something they developed it and they choose the first letter of their name. Okay. So main working of AWK is first it's scan a file line by line. So whatever file you are going to input it, it will treat one line as a single line input, and then it will jump to other line and so on. And second, it split each input line into fields, and the meaning is let's say this is the line, okay, and I give this line as an input to AWK, then it will break these lines into multiple tokens. So split become one token, each become one input, become one line into fields like this. ठीक है, ये बेसिकली क्या करता है, जैसे यहाँ पे स्पेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट स्पेस के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देता है कि अलग अलग वर्ड्स में इसको ब्रेक कर देगा, एंड दोज वर्ड्स वी कॉल इट एज ए फील्ड. So you can treat it, it break that thing into number of columns divided by space. So space it treat as a by default delimiter. Delimiter मतलब कि दो वर्ड्स को आपको ब्रेक कहाँ से करना है, किस कीवर्ड से ब्रेक करना है. So by default it will treat space as that particular keyword, and you can manipulate that thing also. So you don't want space, let's say you want comma, so you can code it to accept comma as a delimiter. That's one important thing. Okay, and one more thing, as it break the particular line into fields, it number those lines. ठीक है, so for first word it will number is $1, second $2, $3, $4, $5 and so on. ठीक, तो जितने भी उसको पार्ट्स में ब्रेक कर रहा है, हर पार्ट को वो एक नंबर दे दे रहा है. तो ये बात हमारी क्लियर हो गई. And then it says it compares input line field to a pattern. So that's a important thing. ये तो हमारी बेसिक बात होगी, वो करता क्या है. सेकंड इसका जॉब क्या है कि जो भी आप यहाँ पर लाइन उसको इनपुट कराते हो, उसके साथ आप उसको एक पैटर्न भी इनपुट कराते हो. ठीक, तो वो उस पैटर्न को मैच करेगा कि उस पर्टिकुलर लाइन में कहाँ वो पैटर्न मैच हो रहा है. जैसे एग्जैक्टली आपका कंट्रोल F क्या करता है, आप कंट्रोल F प्रेस करते हैं एंड यू गिव ए पैटर्न और सम टेक्स्ट टू सर्च, तो पूरे टेक्स्ट में सर्च करता है कि वो पर्टिकुलर पैटर्न कहाँ पर अकर हो रहा है. ठीक है, सेम काम ये भी करेगा, उस पैटर्न को चेक करेगा कहाँ अकर हो रहा है. ठीक, और जहाँ पर भी वो पैटर्न अकर होगा उसके साथ उस पर्टिकुलर पोजीशंस को कुछ प्री डिफाइंड एक्शंस हैं जिसको आप डिफाइन करेंगे, उस एक्शन को उन पर्टिकुलर लाइंस पर वो अप्लाई करेगा. ठीक है, सो दैट मीन्स परफॉर्म एक्शंस ऑन द मैच लाइन. ये इस AWK का मेन खेल है. अगर आप इसको बेसिक ब्रेक करोगे, सो इट टेक वन इनपुट, it has one pattern which it will match with that input, and then based on the match it will perform one operation. इतनी बात हमारे पास क्लियर होके आती है. अब देखते हैं काम कैसे करता है. ठीक है, काम करने के लिए तो पहले मान लो एक टेक्स्ट ले लेते हैं, इसी को ले लेते हैं. सो लेट्स से वी हैव दिस टेक्स्ट फाइल, Ctrl+V, let's save it, desktop. यहाँ पे सेव कर लेते हैं. ठीक है इसको. सो वी कैन नेम इट एज AWK टेस्ट फाइल डॉट
Fine. And now if you try to see, and let's try to manipulate this particular file. How we can do it? First of all, we have to go to that particular position, or you can simply give the path of that particular file. Both are fine. So easy way, let's go to that position. Okay. Yeah. CD. Why it is not taking? Okay. Actually, I have two directories with Bennett University, so it was asking me to give the full name. You can see it here. So Bennett University doc and Bennett University. Okay, that's why it got confused. Fine. So let's run ls here, and we have that particular file at this particular position. Let's check. Where is AWK file? We just wrote it. Okay. सर लिनक्स एंड शेल फोल्डर में था ना. Okay, Linux and shell. Sorry. Okay. My mistake. CD. हाँ, यहाँ मिल जाएगा. हाँ, ये रहा. ठीक है, हम लोग गलत जगह सर्च ही कर रहे थे उसको. अच्छा, अब खेल क्या है हमारा? बहुत इजी है. एक काम करता हूँ, एक वर्ड फाइल भी खोल लेता हूँ, एक टेक्स्ट फाइल खोल लेता हूँ. पैरेलल में हम उसको राइट डाउन भी करते जाएंगे कि हम लोग क्या कमांड कर रहे हैं. दैट विल बी ईजी फॉर अस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या देखा था कि AWK जो आपका है, वो कैसे सर्च करता है? इट हैज सम पैटर्न, एंड बेस्ड ऑन पैटर्न इट विल परफॉर्म सम एक्शन. सो दैट इज बेसिक लुक फॉर दिस पर्टिकुलर AWK कमांड. इसको छोटा कर लें तो शायद दोनों देख सकते हैं. मज़ा नहीं आएगा. ठीक है, इसको स्विच करते रहेंगे. अब हमको क्या करना है? सो वी वांट टू मैनिपुलेट दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट फाइल. तो इसका कंटेंट देख लेते हैं. वी कैन चेक द कंटेंट वाया कैट कमांड. ठीक है, सो दिस इज द कंटेंट ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल. नाउ व्हाट वी कैन डू विद द AWK. सो फर्स्ट ऑफ ऑल AWK, if you want to print everything, let's say if I want to print each and everything in this particular file, so what I can do it, I can skip the pattern. So I don't need a pattern, that I can skip. ठीक है, और सीधे सीधे मैं एक्शन यहाँ पे मेंशन कर सकता हूँ. तो अगर कोई पैटर्न नहीं है तो वो क्या करेगा? सीधे एक्शन पर जंप कर जाएगा. तो उसके लिए सिंपल है. सो वॉट एवर एक्शंस एक्चुअली यू आर गोइंग टू राइट, यू हैव टू पुट इनसाइड फर्स्ट कोलन. ठीक है, जो भी आप पैटर्न लिखोगे आपको इसको छोटे से इसके अंदर लिखना है. ठीक, और एक्शंस आपके आते हैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर. सो हियर आई वांट टू प्रिंट द होल डेटा. और उसके बाद आप यहाँ पे मेंशन करोगे दिस इज माय AWK पैटर्न एंड एक्शन. सो एक्शन यहाँ पे कुछ नहीं है, डायरेक्टली पैटर्न है. सॉरी, पैटर्न नहीं है, डायरेक्टली एक्शन है. और उसके बाद आप यहाँ पर मेंशन करोगे अपना फाइल नेम. सो फाइल नेम इज AWK टेस्ट फाइल. तो जैसे ही मैंने इसको रन किया, इट प्रिंट्स मी ईच एंड एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर फाइल. ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है. अब हमारा जो बात था कि AWK आपका ये जो पर्टिकुलर फाइल हम रीड करते हैं, इसको फील्ड्स के अंदर ब्रेक कर देता है. मतलब इसको डिफरेंट कॉलम्स के अंदर ब्रेक कर देगा, और ईच एंड एवरी कॉलम को वो नंबर असाइन करता है. सो लेट्स से यू वांट टू प्रिंट द फर्स्ट कॉलम ओनली, you don't want to print the whole file. So how can you do it? So you can mention that thing inside the action कि आप क्या action ले रहे हैं. So I want to print, but I want to print only first column. So you can mention it with the $1. ठीक है, so $1 stands for first column. So if you try to run it, you can see it will print only $1. So that's it.
If you want to print more than one line, so $1 and $2, it will print two lines. So first column it will print and it will print the second column. इस तरीके से आप अपनी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उतने कॉलम आप प्रिंट कर सकते हो। तो बहुत इजीली आप फाइल को मल्टीपल पार्ट्स के अंदर ब्रेक कर सकते हो, आप उसके अंदर पीक कर सकते हो। ठीक, सो नॉट ओनली $1, यू कैन प्रिंट एक्चुअली एनी कॉलम। लेट्स से यू वांट टू प्रिंट नंबर 4, ठीक है, सो दैट आल्सो यू कैन डू इट। सो दैट विल बी द फोर्थ कॉलम ऑफ दिस पर्टिकुलर फाइल। यहाँ पर एक चीज़ बहुत इंटरेस्टिंग है, देखना, लाइन नंबर 1 हमारे पास है, उसके अंदर जो कैरेक्टर्स हैं, सॉरी जो वर्ड्स हैं वो लाइन नंबर 2 से कम हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्या करेगा कि ईच लाइन को आपको नंबर ऑफ कॉलम्स में इसके अलग बन जाएंगे। तो इसके कितने बनेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। सो फॉर दिस थिंग इट विल ब्रेक इनटू 7 पार्ट्स एंड फॉर दिस थिंग इट विल ब्रेक इनटू 1 2 3 4 5 6 7 8। अगर एक और होता तो 8 पार्ट्स में उसको ब्रेक करता। ठीक है, ये फंडा है। तो ईच लाइन को इंडिविजुअली ट्रीट करता है वो, तो हर लाइन का फोर्थ कॉलम वो प्रिंट कर देगा। ओके, अब अगर आपको लास्ट कॉलम प्रिंट करना है ईच एंड एवरी लाइन का, और मे बी मोस्ट ऑफ द टाइम यू डोंट नो दैट हाउ मेनी कॉलम्स एक्चुअली आई हैव इन माय टेक्स्ट। ठीक है, उसके लिए आप क्या करोगे, एक प्री डिफाइंड इसके अंदर वेरिएबल्स होता है एंड दैट प्री डिफाइंड वेरिएबल इज NF। ठीक, NF मीन्स नॉट फाउंड। सो जो लास्ट वेरिएबल होगा यहाँ पे लिनक्स में जब हम इसको ट्रैवर्स करते हैं, ये वेरिएबल होता है आपका नॉट फाउंड। ठीक है, कि अब उसको कुछ नहीं मिल रहा। और ये वाला होता है न्यू रो, अगर आप नया लाइन से रीड करते हैं दैट इज NR, तो उसको ये NR ट्रीट करता है, लास्ट वाले को ये ट्रीट करता है NF। ये प्री डिफाइंड है हमारे पास। तो अगर आप NF टाइप करते हैं देन इट विल प्रिंट यू द लास्ट लाइन ऑफ दिस पर्टिकुलर इनपुट फाइल। ठीक है, सो इट विल प्रिंट लाइन फील्ड पैटर्न लाइन। ठीक है, ये इसका आपका आउटपुट आ गया। अच्छा, अगर आप चाहते हैं कि इफ़ यू वांट टू प्रिंट सेकंड लास्ट लाइन, देन हाउ कैन यू डू इट? सो यू कैन सिंपली मैनिपुलेट दिस पर्टिकुलर वेरिएबल एज ए सेकंड लाइन। सो यू कैन टाइप NF-1, okay, and put it inside bracket. So first this will calculate and then we are going to print it. ये अब ये हमने क्या प्रिंट किया? सेकेंड लास्ट लाइन, दैट इज बाई इंटू टू एंड मैच। ठीक है, बाई इंटू टू एंड मैच। तो ये सारी चीज़ें हम लोग AWK से फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंट कर सकते हैं, मतलब इतने पर्टिकुलर एक्शंस हम लोग परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक, अब हम लोगों ने कहा कि भाई AWK के अंदर एक्शन तो परफॉर्म करता ही है, उसके अंदर एक चीज़ होती है पैटर्न। पैटर्न कैसे काम करता है? तो यहाँ पे देखते हैं, इसका जो सिंटैक्स होता है लिखने का, दैट इज AWK, and if you want to mention any pattern you have to write it inside /. So here you can write it like this. So this is your pattern and your action should be inside the curly bracket. So that is your action, and then we have our file name. So that is the actual command. Sorry, we have to close it. ठीक है, यहाँ पे हमने इसको ओपन किया कॉलम एंड यहाँ पर हम उसको क्लोज करते हैं। सो दैट इज योर सिंटैक्स फॉर दिस थिंग। आप इसको रन करके देखते हैं तो सेम एग्जांपल हम लोग यहाँ पे यूज़ करते हैं। एंड लेट्स से आई वांट टू प्रिंट दोज लाइंस विच हैव इनपुट एज ए वन ऑफ द फील्ड। ठीक है, सो ओनली दोज लाइन आई वांट टू प्रिंट। So how can we do it? Same thing, you write print and here you have to mention the pattern. ठीक है, तो पैटर्न कैसे मेंशन करेंगे? /. What thing you want to match? Actually you want to match input. Okay, so it will print those lines which has input. So let's see. It will print only C and B. So only B we have one thing called input, in C we have something called input. ठीक है, इस तरीके से हम किसी पर्टिकुलर इनपुट वाली लाइन को भी फैच कर सकते हैं। अब ये फंक्शनलिटी देखो आपको और किसी भी वर्ड प्रोसेसर में नहीं मिलेगा। Ctrl F करिए, वो सिर्फ उसको हाईलाइट कर देगा।
है ना, लेकिन उस पर्टिकुलर लाइन को फैच नहीं करेगा। सी द पावर ऑफ AWK, आप उसके अंदर बहुत कुछ कर सकते हो। अब आप चाहते हो कि ओके यू वांट टू प्रिंट ओनली फर्स्ट कॉलम, लेट्स से यू वांट दैट नंबर, कि कौन से नंबर वाली पोजीशन पर वो इनपुट ऑकर हो रहा है, ठीक है, कौन कौन सी लाइन है। सो यू वांट टू प्रिंट दैट लाइन, यू कैन सिंपली टाइप $1। दैट मीन्स यू कैन स्पेसिफाई द कॉलम, विच कॉलम यू वांट टू प्रिंट, ठीक है, वो भी आप स्पेसिफाई कर सकते हो बेस्ड ऑन द input pattern match. So you can get it only B and C has input inside there. ये बातें क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसके अंदर बहुत कुछ मैनिपुलेशन परफॉर्म कर सकते हो। ओके, थोड़ा और कमांड देखते हैं इसके। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज हम लोग देखते हैं which is called, अच्छा ये चीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। यहाँ पर हम लोग थोड़ा और उसको खेल करते हैं एंड लिनक्स में बहुत बढ़िया चीज है कि हाँ यहाँ पार्डन सर इनपुट और प्रिंट वाला फंक्शन है, फिर से समझा दीजिए कोड आपने बताया। तो AWK का बेसिक फंडा क्या है कि इसके अंदर आप सबसे पहले एक पैटर्न देते हो, ठीक है, इससे मैच हो जाए, और मैच होने के बाद क्या हो, ये काम हो जाए, इतना काम आप करते हो, ठीक है। और ये हमारी कुछ नहीं, बस फाइल की लोकेशन है कि कहाँ पे फाइल, किस फाइल पे हमको मैनिपुलेट करना है। तो जैसे ये हमारा इनपुट था, ठीक, ये हमारा इनपुट था। अब मैं इस इनपुट में चाह रहा हूँ कि ये मतलब इनपुट फाइल है हमारी, एंड आई एम प्लानिंग दैट द कीवर्ड इनपुट शुड मैच, ठीक। तो इसमें से जहाँ जहाँ इनपुट कीवर्ड होगा वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इनिशियली इट विल हाईलाइट दोज थिंग्स, मतलब इंटरनली करेगा, आपको दिखाएगा नहीं, ठीक। और उसके बाद एक्शन क्या चाह रहा हूँ यहाँ पे मैं कि आई वांट टू प्रिंट कॉलम 1। सो इस पर्टिकुलर पोजीशंस के, मतलब इस पर्टिकुलर रोज के कॉलम 1 को प्रिंट कर दो। तो कॉलम 1 क्या हो गया इसका, B एंड C। क्लियर है? यस सर। इट प्रिंट्स कॉलम B एंड कॉलम C। यहाँ पर आप कुछ भी दे सकते हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं कि कॉलन सॉरी $0 की अगर हम बात करते हैं, सो $0 मीन्स होल फाइल। सो इफ यू वांट टू प्रिंट द होल फाइल यू कैन प्रिंट इट लाइक दैट, ठीक है, इट विल प्रिंट ईच एंड एवरीथिंग फॉर यू। एक और इम्पॉर्टेंट चीज, इफ यू वांट टू प्रिंट समथिंग विच हैज इनपुट, ठीक, तो हमने बहुत इजीली उसको प्रिंट कर लिया। जिस लाइन में इनपुट है अगर आपको प्रिंट करना हो तो कैसे कर सकते हो, सिंपल कीवर्ड इनपुट डालो और वो लाइन आपकी प्रिंट हो जाएगी। लेट्स से यू वांट टू एक्सक्लूड दोज लाइन, यू डोंट वांट दोज लाइन विच हैज इनपुट कीवर्ड, वहां पर आप नेगेशन भी अप्लाई कर सकते हो। कैसे करोगे नेगेशन अप्लाई करने के लिए, यू हैव समथिंग कॉल्ड एक्सक्लेमेशन मार्क एंड टाइटल, ठीक है। सो इसके बाद मतलब कि उस इनपुट्स को मतलब एवरीथिंग एक्सेप्ट दिस इनपुट लाइन, ठीक। तो जहां जहां इनपुट नहीं होगा उन लाइन को हम लोग एक्सेप्ट कर लेंगे, ओके। हाँ ठीक है, सॉरी एक ही सिंबल लगेगा, ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड फॉर नेगेशन सिंबल। अब देखो, अब मैंने कौन कौन सी लाइन प्रिंट कर दिया जिसमें इनपुट है ही नहीं, है ना, ये वाली चीज है। तो आप उसको लाइन नंबर A, इसमें कोई भी इनपुट कीवर्ड नहीं है, और लाइन नंबर D, इसके अंदर भी कोई भी इनपुट कीवर्ड नहीं है। तो यहाँ पर देखो बहुत ही पावरफुल मेथड्स में आप अपने टेक्स्ट को सेग्रीगेट कर सकते हो, उसके अंदर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक और चीज़, यहाँ पर आप लिमिट भी दे सकते हो। लिमिट कैसे दे सकते हो, यू वांट टू लेट्स से प्रिंट, यू वांट टू मैच समथिंग, जैसे यहाँ पे डेटा नहीं है, उसको डेटा, अभी देखते हैं इसको भी आगे देखते हैं डेटा के साथ कैसे करते हैं, ठीक। एक और इम्पॉर्टेंट कमांड, पहले ये क्लियर हुआ, ये बताओ, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट कमांड पे जंप करता हूँ। AWK क्लियर, ओके। तो नेक्स्ट कमांड हमारे पास है पाइप। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है।
सो पाइप कमांड करती कैसे है? तो इसका सिंटेक्स है आपका command 1, so first command, and this is a symbol for pipe, that's horizontal vertical line, ठीक है. And here we have command 2, so it basically takes two commands, first command and second command, ठीक. और इसका फंक्शन क्या है? so this is act as output of command 1, okay, act as input to कमांड 2, ये इसका फंडा है. तो बेसिकली पाइप क्या है कि आपने दो कमांड को ऐड कर दिया पाइप से. तो एक कमांड को आपने एग्जीक्यूट किया, उसका आपको कुछ आउटपुट मिला, आपने वो आउटपुट फीड कर दिया सेकंड कमांड में एज ए इनपुट. बात समझ में आया? तो इसके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, दो कमांड्स की पावर को कंबाइन कर सकते हो. वेरी वेरी पावरफुल थिंग इन लिनक्स. ओके, अगर आप इस पर कमांड करते हो, मतलब आपको कंट्रोल आ गया इसको कैसे यूज करना है, तो आपको बहुत सारे काम बहुत इजीली हो जाएगा. आपको मल्टीपल कमांड नहीं लिखना, एक ही कमांड में आप सारे के सारे काम परफॉर्म कर सकते हो. अच्छा, अब इसको देखते हैं इसका मतलब क्या है. सो हियर वी हैव सम फाइल, ठीक है. ये हमारे पास एक फाइल थी, हमने इसको रीड किया कैट से. दिस इज अवर फाइल, ठीक है. अब यहाँ पर जब तक अभी हम लोग इनपुट दे रहे थे, हम लोग AW के कमांड के अंदर, है ना, इनपुट फाइल जो हम लोग रीड कराना चाह रहे हैं उसको हम यहाँ पर पास कर रहे थे. अब मैं चाहता हूँ कि मैं इसको AWK से रीड ना कराऊँ, मैं इसको कैट से रीड कराऊँ, क्योंकि हमारे पास एक ऑलरेडी रीडिंग टूल है. ठीक, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर कैट यूज से फाइल को रीड करूँगा. ठीक, फिर मैं पाइप लगाऊंगा और जो मेरा आउटपुट आया है, मतलब जो ये फाइल रीड होके आई है, इस आउटपुट को मैं एज ए इनपुट पास कर दूंगा AWK के अंदर. बात समझे कैसे करते हैं? बहुत सिंपल फॉर्म में एग्जांपल लेते हैं. ठीक, तो यहाँ पर अगर मैं रीड करना चाहूँगा कि मैं रीड करने के लिए भाई साहब कैट का यूज़ करूँगा. ठीक, तो मैं कैसे करूँगा, मैंने कैट से उसको रीड किया. ठीक, अब इसका जो आउटपुट आया, मतलब आउटपुट क्या है, ये पर्टिकुलर फाइल आई हमारे पास. ठीक, अब इस आउटपुट को मैंने क्या कर दिया, पाइप के थ्रू पास कर दिया AWK के अंदर. AWK के अंदर मैं पास कर दिया. एंड व्हाट आई वांट, आई सिंपली वांट to print those lines which has what you want to say, let's say input. ठीक है, input ही हमारा कीवर्ड है. तो we want to print something which has input as a pattern. So I kept input here and I want to print those lines. ठीक है, and we can press enter. यहाँ पर देखो, अब मुझे AWK के बाद यहाँ पर मुझे अपनी फाइल का नाम नहीं देना पड़ा, है ना. एंड इट विल प्रिंट दोज लाइन विच हैज इनपुट एज ए मैचिंग कीवर्ड. क्लियर हुआ कैसे काम हो रहा है यहाँ पे? ये बात क्लियर है. बेसिकली कर क्या रहा है, इसने इस कमांड का जो आउटपुट आया उसको इस कमांड के इनपुट में इसने पास कर दिया. ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखते हैं. ठीक, ये तो ईजी था. आप कहेंगे कि सर फाइल तो हम यहाँ पे भी पास कर सकते हैं, तो फिर अलग से कैट करने की क्या ज़रूरत है. ठीक, दैट्स वन ईजी इनपुट. अब देखो, एक बहुत इंपॉर्टेंट आपके पास कमांड है, जैसे हम लोग बोलते हैं ls. ठीक, तो ls-l कमांड क्या है कि बेसिकली आपकी जितनी भी फाइल्स एंड फोल्डर्स हैं उन सारे के बारे में इंफॉर्मेशन देता है. अब आप चाहते हो कि मुझे इसके ऊपर AWK लगाना है ना. अब इसके ऊपर अगर आप AWK लगाओगे तो पहले हम लोग क्या कर सकते थे, अगर मुझको पाइप नहीं आता तो मैं इसको पहले कॉपी करता, किसी फाइल के अंदर पेस्ट करता और उसके बाद उसके ऊपर मैनिपुलेशन परफॉर्म करता. तो क्वाइट हेक्टिक टास्क, बट विद द हेल्प ऑफ पाइप आई कैन डू इट इन अ सिंगल लाइन ओनली. ठीक, कैसे? हियर, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई राइट ए कमांड ls-l. ठीक है, सो दैट कमांड विल गिव मी दिस आउटपुट. फाइन. And what I want, I apply a pipe. That means this output should act as a input file for AWK. And what I want, let's say I want to print last column of this thing. ठीक है, last column print करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. AWK not this. ठीक, हम यहाँ पे कोई पैटर्न मैच नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली प्रिंट कर रहे हैं लास्ट कॉलम. ठीक है, तो पैटर्न वाला पार्ट हटा दो, प्रिंट करो उसको सीधे.
प्रिंट और लास्ट कॉलम कैसे हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं? वी हैव ए इनबिल्ट वेरिएबल विच इज कॉल्ड NF. Clear? So when you press it, see, it will give you the last column of this particular file. So इसका लास्ट कॉलम क्या है? अगर मैं इसको स्पेस से डिलिमिट करता हूँ, so that will be the last column for this thing. First that will be the last column. इस लाइन को भी रीड करेगा, ठीक है? तो इसके अंदर 2 एंट्री है, तो पहला ये, दूसरा ये, बस यहाँ 2 तक काउंट करेगा. इसके अंदर क्या काउंट करेगा? सो दैट विल बी द लास्ट कॉलम, ठीक है? सो दैट विल बी द लास्ट कॉलम. तो ये सारी चीज़, क्योंकि ये लास्ट स्पेस है, इसके अंदर कोई स्पेस नहीं है, तो फिर इसको वो लास्ट कॉलम ट्रीट करेगा. यहाँ पर देखो स्पेस है, तो ये लास्ट कॉलम हो जाएगा, है ना? इस तरीके से ये लास्ट कॉलम हो जाएगा. तो हर लाइन का जो भी लास्ट वाला होगा वो प्रिंट कर देगा. हियर यू सी, जो भी लास्ट लाइन हमारे पास है, हमने उसको यहाँ पर प्रिंट कर दिया. सी द पावर ऑफ पाइप, है ना? अब आपको ये सब पहले स्टोर करना पड़ता, फिर यहाँ पे आके डालना पड़ता, कितना सारा फजीहत करना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आप सारे के सारी चीज़ों से बच गए. अच्छा, एक बात है, अब लेट्स से यू वांट टू डू सम मोर मैनिपुलेशन. पैटर्न मैचिंग भी कर सकते हो. सेम, लेट्स से यू वांट टू मैच एनी पैटर्न. आप यहाँ पे क्या मैच करना चाहते हैं? लेट्स से यू वांट टू प्रिंट अगस्त डेटा, ठीक है? तो अगस्त में जो जो मेरा फाइल क्रिएट हुआ है, इफ़ आई वांट टू फैच दैट फाइल ओनली, हाउ कैन यू डू इट? सिंपली यहाँ पे पैटर्न में आप क्या दे दो? अगस्त, AUG, और यू वांट टू प्रिंट, ठीक? लास्ट में आप सारी चीज़ प्रिंट करना चाहते हो. लेट्स से आई वांट टू प्रिंट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक? यू कैन प्रेस एंटर, ठीक? सो नाउ इट फिल्टर्ड दैट रिजल्ट फॉर अगस्त ओनली. सो ओनली अगस्त मंथ डेटा इट विल शोइंग टू मी, ठीक है? ये इसका बहुत ही पावरफुल चीज़ है जो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हो. 2 मल्टीपल कमांड्स को आपने कंबाइन किया एंड यू आर गोइंग टू यूज इट. ये बात क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत मजा आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, सो एक और चीज़ यहाँ पे हम लोग देखते हैं. वी हैव एनी फील्ड डिस्क्रिप्टर? ठीक. यहाँ पर, ठीक, आप रेगुलर एक्सप्रेशन जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, ठीक, यहाँ पर आप यहाँ पे सिंपल पैटर्न पास कर रहे हैं. लेट्स से आई वांट टू पास सम स्पेसिफिक रेगुलर एक्सप्रेशन. सो रेगुलर एक्सप्रेशन मीन्स होता है कि अगर आप एक एक्सप्रेशन पास करते हो और जो भी उस एक्सप्रेशन से मीट करता है, ठीक, वो चीज़ वो एक्सेप्ट कर लेता है. तो जैसे एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, यहीं पे मैं एक एग्जाम्पल लिखता हूँ. रेगुलर एक्सप्रेशन बेसिकली आप कोई भी चीज़ लिखने का जनरलाइज फॉर्म की बात कर रहे हो. तो अगर आपको कोई नंबर मैच करना है, ठीक है, तो नंबर आप कैसे मैच कर सकते हो? आप एक उसके लिए पैटर्न लिख सकते हो. दैट पैटर्न इज 0,9, ठीक? दैट मीन्स इफ यू वांट टू मैच ए नंबर, देन दैट नंबर शुड लाई बिटवीन दीज रेंज, है ना? इसके बाहर जाएगा तो वो नंबर नहीं होगा. तो ये उसका क्या होगा? एक जर्नल एक्सप्रेशन हो गया. तो इसी को हम लोग बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन. अगर आपको कोई अल्फ़ाबेट मैच करना है, सो हाउ कैन यू राइट ए अल्फ़ाबेट? यू कैन पुट कोलन, दैट सॉरी स्मॉल ब्रैकेट, एंड यू कैन सी दैट लेट्स से यू वांट टू मैच ओनली स्मॉल केस, ठीक है? सो यू कैन प्रेस A:Z, ठीक? सो एनीथिंग विच लाइज, एनी करेक्टर विच लाइज बिटवीन दीज टू रेंज, आई ट्रीट इट एज ए अल्फ़ाबेट. सो बेसिकली यहाँ पे मैं क्या करूँगा? यहाँ पर मैं एक इस तरीके से एक पैटर्न दूंगा, ठीक है? अब मुझे नहीं पता कि भाई पर्टिकुलर पैटर्न क्या है, सिर्फ मुझे उसमें से अल्फ़ाबेट प्रिंट करना है ना? तो मैं यहाँ पे उसको एक पैटर्न दे सकता हूँ कि यू कैन फॉलो दिस पैटर्न. सो एनीथिंग बिटवीन A to Z दैट इज अ मैच फॉर, एंड हियर आई कैन परफॉर्म ए पर्टिकुलर एक्शन. ये कितनी पावरफुल चीज़ है. देखो, अब आपको एग्जैक्ट पैटर्न भी नहीं बताना, अब आप पैटर्न दिखता कैसा है या बनता कैसा है वो बता दो, एंड यू आर गुड टू गो. वी कॉल इट एज ए रेगुलर एक्सप्रेशन. ठीक, अपने आप में बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर.
इस चीज़ को एक्सप्लोर करना, ठीक है। काफ़ी सारी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखने के तरीके हैं हमारे पास, एंड एक्चुअली यू आर गोइंग टू यूज इट। तो जैसे आप कोई पासवर्ड इनपुट करते हो तो इट विल आस्क कि भाई वो अल्फा न्यूमेरिक होना चाहिए। तो पासवर्ड को कैसे पता चलता है कि वो अल्फा न्यूमेरिक है या नहीं? या फिर आप जो ईमेल लिखते हो, ईमेल में @ सिंबल होना चाहिए, तो वो हम लोग कैसे पता करते हैं? ईमेल तो आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन @ सिंबल होना चाहिए, तो वो आपका पता करता है विद द हेल्प ऑफ रेगुलर एक्सप्रेशन ओनली। वो पैटर्न उस फॉर्म में मैच हो रहा है कि नहीं, ठीक? तो जैसे इस तरीके में लिखा जाएगा। ये देखने में गंदा सा लगता है, बट इट्स अ वेरी पावरफुल टूल। कोई छोटा मोटा रेगुलर एक्सप्रेशन देखते हैं, सो दैट विल बी इजी फॉर अस टू अंडरस्टैंड। ये तो सब खतरनाक वाले दिखा रहा है। ओके, ऐसे ये है, ठीक। सो एक्सप्रेशन डॉट AT, तो मैच एनी 3 करेक्टर स्ट्रिंग एंडिंग विद AT। तो जो भी AT इसके लास्ट में होगा वो करेक्टर हम यहाँ पे मैच कर लेंगे। इस तरीके से बहुत सारा है, मतलब ये अपने आप में एक अच्छा खासा फील्ड है जिसको हम लोग स्टडी करते हैं। बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, बट या इट हैज़ समथिंग दैट यू हैव टू सी एंड चेक। फंडा क्या है यहाँ पे हमारे पास? आइदर गिविंग इज डायरेक्ट कीवर्ड, ठीक है। आप यहाँ पर उसको एक पैटर्न की फॉर्म में भी दे सकते हो, रेगुलर एक्सप्रेशन की फॉर्म में, एंड इट विल मैच दोज थिंग्स। ट्राई करते हैं। सो लेट्स से आई वांट टू, क्या प्रिंट करें, क्या मैटर मैच करते हैं यहाँ पे? चलो पैटर्न तो देख लेंगे, एक और चीज कर सकते हैं। जैसे ये वाला कॉलम है आपका, है ना? कौन सा कॉलम है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये 7th कॉलम है, ठीक। अब इस कॉलम के अंदर आप चाहते हो कि ये आपका कीवर्ड्स है, ठीक है, नंबर्स हैं आपके, एंड यू वांट टू प्रिंट दोज नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 30। सो लेट्स से यू वांट टू प्रिंट दैट लाइन ओनली, है ना? तो आप कैसे प्रिंट करोगे? या फिर जो ग्रेटर देन 25 है वो आपको प्रिंट करने हैं, वो भी आप यहाँ पर कंडीशन मेंशन कर सकते हो। कंडीशन कैसे मेंशन कर सकते हो? दिस इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, 7th कॉलम, ठीक। पैटर्न में आप यहाँ पे डालो $7 शुड बी ग्रेटर देन लेट्स से 25, ठीक, एंड देन यू वांट टू प्रिंट दैट पर्टिकुलर लाइन। ये भी आप यहाँ पर कर सकते हो, कंडीशंस यहाँ पे आप दे सकते हो, ठीक। Okay, why it doesn't print? Let's put inside a bracket. Okay, it should work. Let's see what we have in $7. Print $7. Yes, we have this line. Okay, so it should work. We have entries, this entries, this entries. Let's try it again. ls minus l, and let's print. यहाँ डालते हैं $7 should greater than 25. No. Okay, I am doing any mistake. Let's check. Some syntax I am forgetting. Okay, I don't think so. We have to put it inside the that forward slash bracket. Okay, क्योंकि पैटर्न नहीं है, यहाँ पे हम कंडीशन मैच कर रहे हैं, तो दैट मिस्टेक आई वाज डूइंग। तो उसको यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है, और हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, उसको डायरेक्टली प्रिंट कर ले रहे हैं। हाँ, अब ठीक है। एक्चुअली मैं यहाँ पे क्या मिस्टेक कर रहा था, बेसिकली हम लोग क्या करना चाह रहे थे कि एक बार फिर से देखते हैं, ये हमारे पास एक इनपुट फाइल है, ठीक है, और हम चाह रहे थे कि इस पर्टिकुलर कॉलम में, ये जो नंबर्स वाला कॉलम है, इस नंबर कॉलम में आई वांट टू प्रिंट ओनली दोज लाइंस विच हैज नंबर ग्रेटर देन 25 और एनी नंबर यू वांट। वो चीज़ हम लोग यहाँ पर उन पर्टिकुलर लाइन्स को प्रिंट करना चाह रहे हैं। कैसे हम लोग उस लाइन को प्रिंट कर सकते थे?
हमने यहाँ पे कंडीशन लिखा $7, दैट मीन्स सेवेंथ कॉलम शुड बी ग्रेटर देन 25। तो वो पर्टिकुलर कॉलम वाली वैल्यूज को हम लोग यहाँ पर प्रिंट कर रहे हैं। तो मैंने गलती से उसको फॉरवर्ड स्लैश में रख दिया था पैटर्न फॉर्म में, ये ऐसे आ जाएगा डायरेक्ट सिंटैक्स। इस फॉर्म में जब मैंने इसको रन किया, so see now I am getting only those lines which has this particular number which is greater than 25। ये सारी चीज़ आप वर्ड के अंदर कर ही नहीं सकते, मतलब इट्स वेरी वेरी हार्ड टू डू दोज थिंग्स इन एनी अदर टूल, एंड दैट पावर यू कैन गेट इट इन AWK। ठीक है, आई एम जस्ट स्क्रैचिंग द सरफेस। एक चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है, एज आई सेड दैट बाय डिफॉल्ट इट विल ट्रीट स्पेस एज ए डीलिमिटर। अगर आप उसको चेंज करना चाहते हैं, लेट्स से यू वांट टू ब्रेक दैट फाइल इन टर्म्स ऑफ दिस कोलन, है ना, दिस कोलन, यू वांट टू separate fields based on this colon, so you can do that thing also। how can you do it? तो ये तो आप सिंपली रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आप वो चीज़ मेंशन कर दो। तो इसको हटा देते हैं एंड यू हैव टू मेंशन एक्चुअली व्हाट शुड बी द न्यू डिलिमिटर। हाउ कैन यू डू इट? you have to use the command -f, capital F, okay, so that it will tell you to change the delimiter, and here in colon you have to specify which new delimiter you want to introduce। how can you do it? you have to apply this thing, और बाकी अब क्या करना है, उसको प्रिंट कर रहा है बेसिकली। okay, So that inverted comma is not there. एक ही तरह। रुक जाओ भाई। ये शायद भूल गया मैंने लगा ना, इट शुड वर्क। अब क्या पंगा कर दिया मैंने भाई? ओके, कमांड इसका भूल जाता हूँ। you can change the field, ओके यहाँ पे चेक करते हैं, मैंने शायद लिखने में कुछ गलती कर दिया। क्विक, यस, ओके, मैंने शायद डबल कॉलम लगा दिया, ये मिस्टेक में गया, बाकी चीज़ तो सेम था। माइनस एफ यूज़ करना है, ठीक है, चेंज करने के लिए, एंड सिंगल कोट्स के अंदर you have to keep this thing inside line। no it doesn't work। अच्छा, यहाँ पे मैंने सब कुछ प्रिंट कर दिया है। लेट्स से यू वांट टू प्रिंट फर्स्ट कॉलम ओनली, है ना, तो सब कुछ तो सारा ही प्रिंट हो जाएगा। यू वांट टू प्रिंट ओनली फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस मैचिंग, यस, राइट नाउ इट्स वर्किंग फाइन। बेसिक कमांड क्या है आपका? AWK, एंड यू हैव टू टेल -f, दिस इज द कमांड टू चेंज द फील्ड डिलिमिटर, ठीक है। और यहाँ पे आप किसके थ्रू ब्रेक करना चाह रहे हो? दिस पर्टिकुलर कीवर्ड के थ्रू आप ब्रेक कर रहे हो, कोलन के थ्रू। आप क्या प्रिंट कर रहे हो? पहला कॉलम प्रिंट कर रहे हो। तो यहाँ पर देखो, ये पूरी फाइल को ब्रेक कर देगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पोजीशन, ठीक है, वर्टिकल डॉट डॉट जो आपका है, और ये वाला पोर्शन इसने प्रिंट कर दिया। देखो, अब आप चाहते हो बाकी पोर्शन प्रिंट कर दे, रिमेनिंग वाला, तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर दो $2, ठीक। अब ये क्या प्रिंट कर देगा? आपका रिमेनिंग पोर्शन प्रिंट कर देगा। अब ये इस फाइल को स्पेस से ब्रेक ना करके आपके बताए हुए डिलिमिटर से इसको ब्रेक कर देगा। ये सारी चीज़ आप इसके साथ कर सकते हो। बहुत बार होता है कि लाइक यू गॉट ए फाइल विच इज़
ऑलरेडी लाइक दे यूज कॉमा टू मैनेज द फाइल, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट उसको सेपरेट करने के लिए. सो इन दैट केस यू कैन नॉट यूज स्पेस, सो यू हैव टू स्पेसिफाई द डिलिमिटर. ये है आपका AWK. ठीक है, बेसिक्स चीज़ें मैंने हम लोगों ने जितना इंपॉर्टेंट है उसको हमने डिस्कस किया है, और भी इसके अंदर डीप में है. तो जैसे मैं ये फाइल आपको शेयर करूँगा, यू कैन हैव ए लुक फॉर इट. फर्दर डीप के अंदर क्या है कि जैसे ये पैटर्न है, ये भी हम लोगों ने देखा ही कैसे मैच करते हैं. ओके, नेगेशन हम लोगों ने चेक किया कि पर्टिकुलर कीवर्ड नहीं यूज़ करना है, तो हम लोग कैसे करेंगे, वी डिड इट. ठीक, पैटर्न आप क्या कर सकते हो कि ऐसे आपको रेंज असाइन कर सकते हो कि इस पर्टिकुलर रेंज से एक पैटर्न से दूसरे पैटर्न के बीच में सारी चीज़ें प्रिंट हो जाए. ठीक, सो इट विल स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम रैप्टर एंड इट विल गो अप टू अनदर पैटर्न. सो दैट थिंग यू कैन डू, रेंज यू कैन असाइन, फाइन. वी मैच पर्टिकुलर कीवर्ड कि आपको किसी वैल्यू के फॉर्म में कर सकते हो कि लेट्स से जो आपका कॉलम है उसके एक नंबर से स्टार्ट हो जाए. ठीक, तो कॉलम 4 आपका हो 31 से कब तक जाए, 33 तक. आप कुछ प्रिंट करना चाहते हो वो कर सकते हो, जैसे हमारे में है. ठीक, हम क्या यहाँ पे करते हैं, वी वांट लेट्स से प्रिंट एवरीथिंग एंड देन यू विल सी. ठीक, ये डेटा है. और अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर फाइल में आई वांट टू प्रिंट एवरीथिंग विच स्टार्ट्स बिटवीन 20 to 25, ये आपका टास्क है. लेट्स हाउ कैन यू डू इट, वेरी इजी. ठीक, वी हैव टू फॉलो दिस पैटर्न. So it is saying this is column number 7, we already checked. So column 7 is equal to let's say 20, और हम लोग कहाँ तक जाना चाहते हैं, 25 तक हम लोग जाना चाहते हैं. ठीक, कॉलम लगाया, $7 is equal to 25 and I want to print each and everything. Again some mistake I did. No, I am right at this time. Space दे देते हैं. Why? It should work. We are doing the same. Ta, 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 ta. सर यहाँ पे 20 और 25 की इक्वल कोई वैल्यू ही नहीं है. ये नहीं है तो हमारे पास 22 है. सर हम 20 की इक्वल कर रहे हैं. इक्वल टू आप 20 कह रहे हो ना, ग्रेटर देन इक्वल हाँ टू जी. नहीं, यहाँ पर हम उसको रेंज असाइन कर रहे हैं. लेट $7 फील्ड आपका स्टार्ट हो 20 से और अप टू उसके बीच में 25 के बीच का सारा ये प्रिंट कर देगा. सो आप पैटर्न की रेंज भी असाइन कर सकते हो, मतलब यहाँ से स्टार्ट हो और यहाँ तक खत्म हो. एक्चुअली ये एग्जांपल यही बता रहा है कि ये पैटर्न आपका 4 से स्टार्ट होगा, 31 और 33, तो उस वो वाले पैटर्न यहाँ पे मैच करके प्रिंट कर देगा. तो जैसे यहाँ पे 31 और 33 प्रिंट किया है. अच्छा, ये इक्वल पर हमने यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन 20 लेस देन 30. हाँ, अब ठीक है. लेकिन ये आ गया यहाँ पे 1, ये नहीं आना चाहिए. ठीक है, इसमें कुछ मतलब थोड़ा मैनिपुलेट करके ठीक है सब वो लेस देन 25 ना आ गया. रेंज अच्छा, यहाँ पे उसने 25 दोनों को सेटिस्फाई कर रहा होगा. हाँ, दोनों को ग्रेटर देन 20 को मतलब काम कर रहा है. यहाँ पे बस उसको देने का थोड़ा तरीका आपको ध्यान से देना है ना, रेंज कैसे आप दे रहे हो. ये फंडा है AWK के अंदर. बाकी इसके अंदर चीज़ें इजी हैं, इसको थोड़ा सा ट्रैवर्स करके देखो कैसा क्या नहीं है, एंड वी आर गुड टू गो. ठीक है, सो दैट विल बी फॉर टुडेज क्लास. गो एंड प्ले विद AWK. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल whenever you are going for any text processing or anything which you need to prepare multiple commands and which you need to do multiple times. ठीक है, कुछ पैटर्न फाइंड करना है. अगर आप हैकिंग भी कर रहे हैं तो आपको कोई पर्टिकुलर पैटर्न फाइंड करना है किसी पर्टिकुलर चीज़ में, है ना, या बहुत सारा आपने की लॉगर से उसका टेक्स्ट ले लिया एंड यू हैव टू फिगर इट आउट. अच्छा कि पासवर्ड कहाँ हो सकता है,
तो पासवर्ड कैन मैच आफ्टर एवरी @ सिंबल। @ जनरली हम ईमेल में यूज़ कर सकते हैं, तो आप देखोगे कि @ ईमेल वाला जो रेगुलर एक्सप्रेशन है उसके बाद वाला वर्ड हमारा पासवर्ड हो सकता है, तो वहाँ पर आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो ये सिंपल यूज केसेस में बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें हैं। 2 चीज़ें आज हम लोगों ने सीखा, AWK एंड पाइप। इन दोनों चीज़ों को आप जाके प्रैक्टिस करके देखो, ठीक है। एनी क्वेश्चन?